आज संडे की सुबह हम लोग चार मीनार पर हैं। मैं 15 लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि 2014 में मोदी जी ने जो वादा किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो वादा किया, क्या वो 15 लाख रुपये आवाम के अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स में आए हैं क्या? ये पूछने के लिए मैं आज चार मीनार पर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद नाम है। समद भाई, क्या 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बनकर आए वो, तो उन्होंने कहा था कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपये आएंगे। क्या आप 15 लाख आपको अपने बैंक अकाउंट में मिले हैं? हंसी की बात है भाई, 15 लाख क्या, 15 रुपये भी नहीं है। 15 रुपये भी नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल हवा में ही जुमला कह दिया। सामने है आप लोगों के जो कि बिल्कुल धोखे जैसा ही हुआ। धोखे जैसा ही हुआ। एक आस में रखे, बिल्कुल गरीब आवाम को जो है बड़ी उम्मीद थी कि चलिए कोई बात, किसी ना किसी को तो थी उम्मीद। नहीं, बहुत सौ को थी। हजारों लाखों लोगों को उम्मीदें थी कि बेचारे 56 इंच का सीना लेकर आए थे और लोगों ने उन पर एक भरोसे से उन्हें वोट दिया था। जिस तरह वो राजनीति कर रहे हैं वही बेहतर जाने कि वो कैसा नक्श लोगों के जहन पे छोड़ना चाहते हैं और तारीख में अपना नाम कैसे वो लिखवाना चाहते हैं। ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ గారు 15 लाख रुपये అందరి అకౌంట్స్లో వస్తారని చెప్పారు. మరి మీకు ఆ 15 लाख వచ్చాయా? 15 लाख రాలేదు. ఎలా ఎంతమందిగా వేస్తారు అంటే ఆయన మరి దానికి చెప్పారు కదా వస్తారని. అవన్నీ మాటలే, చేతల్లో ఉండదు. అంతేనంటారా? అంతేగా, ఇప్పుడు అంతేగా ఎవరైనా సరే. కానీ మనలాంటి వాళ్ళు మరి సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం ఓట్ వేయడానికి మరి ఎలాంటి లీడర్ మీద భరోసా చేయాలి? ఎవరి మాటలు నమ్మాలి? అది మనలో ఉండాలి అని మనం డిసైడ్ చేయాలి. అంటే ఆయన ఏదో చెప్పే మాటలు ఎవరు దాని మీద నిలబడతారు? అదే వాళ్ళు నిలబడతారో లేదో వాళ్ళ ఇష్టం. మనం ఓటు వేయాలో వద్దు మనం ఆలోచించుకోవాలి. వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తారు ఓటు వేస్తామని. కరెక్ట్. వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తారు. ఒక బిల్డింగ్ రాసిస్తారు నన్ను ఇచ్చేస్తారా? ఎవరుగా అది మనం చూసుకోవాలి. అది ఇస్తారా లేదా, మంచోళ్ళ కాదా అనేది మనం చూడాలి. పబ్లిక్ ఓటు డిసైడ్ చేయాలి. నా పేరు సుధాకర్ అండి. సుధాకర్ గారు, ఈరోజు నేను కొద్దిగా మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ గారు చెప్పారు కదా అప్పుడు, అందరి అకౌంట్స్లో 15 लाख रुपये వస్తారని. మరి అదే వాళ్ళు పబ్లిక్తో మాట్లాడదాం, వాళ్ళ వ్యూ మరి వచ్చాయా రాలేదా అని అడుగుదామని వచ్చాను. 15 लाख रुपये 15 lakhs అయితే ఎవరికి రాలేదు. ఎవరు కూడా దాన్ని కళ్ళలో బ్యాంకుల్లో పోయి చూస్తే జీరో అకౌంట్ ఉంటుంది. డబ్బులు ఎవరు తీసుకొని ఎంజాయ్ చేసింది లేదు. ఊరికే పేరుకి మాత్రమే వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు, కానీ అకౌంట్స్లో మాత్రం వేసి ఉండరు. కానీ చాలామంది 15 लाख పడతాయని ఆశగా బ్యాంకులు పోయి చూసుకున్నారు. కానీ జన్ధన్ అకౌంట్లు కూడా చాలామంది ఓపెన్ చేశారు. జన్ధన్ అకౌంట్లో కూడా ఏమీ ప్రజలకి పడలేదు. చాలా నిరుపేదలు ఉన్నారు. ఆశ పెట్టిస్తారు కానీ రాజకీయ నాయకులు ఏమాత్రం వాళ్ళకు సహాయం చేసేది ఉండదు. కానీ అంత పెద్ద మనిషి మోదీ గారు లాంటి టాల్ లీడర్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ రోజులో పాపులర్ లీడర్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఆయన ఛవి ఉన్నది. కానీ అలాంటి మాట ఏదో గాలికి మాట చెప్పొచ్చా? గాలికి మాటలు అనేది చెప్పకూడదు. అది ఫ్యూచర్ అనేది భవిష్యత్తు యువకుల మీద ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా యువకులు వాళ్ళ పేదవాళ్ళు కూడా పిల్లలు ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎదగాలనే కోరిక ఉంటుంది. వాళ్ళ డ్రీమ్స్ అనేవి చాలా పెద్దగా పెట్టుకుంటారు. చివరికి వాళ్ళకు డబ్బులు అందకపోయేసరికి వాళ్ళ గోల్ రీచ్ కాకుండా నిరుత్సాహంతో భారతదేశంలో ఇలాంటి మాటలు కూడా చెప్పే రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారని పెద్ద మోడీ అలాంటివి చెప్తే మన దేశానికి కొంత వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుందండి. మరియు ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది, మన యువకులకు కావాల్సింది ఏంది? 15 लाख లేకపోతే ఇంకా మనకు 15 लाख ఇస్తామనేది తప్పు. కానీ ఇచ్చే ప్రతి విద్యార్థులకి కానీ ఉపాధి సౌకర్యాలు, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఉద్యోగాలు, జాబ్స్, మంచి ఫెసిలిటీ, మంచి ఫ్యాక్టరీలు, అలాంటివి కానీ సదుపాయాలను కల్పించినప్పుడు వాళ్ళు 15 लाख అవసరం ఉండదు. వాళ్ళే కష్టపడి పని చేసుకుని వాళ్ళ గోల్స్ అనేది నెరవేర్చుకుంటారు. మాకు కావాల్సిన ఈ ఫెసిలిటీస్ మరియు మా యువకులకు జాబ్స్. मेरा सवाल ये है कि मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के जब रेस में थे तो उन्होंने कहा था कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपये आएंगे. क्या आपको अपने 15 लाख रुपये मिले? नहीं मिले. तो मतलब उनकी जो कही हुई बात ऐसी पूरी गलत है. तो आप अब क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा लीडर ऐसी बात हवा में कह दिया, आप इस पे क्या तबसरा करेंगे? पूरी हवा फायरिंग है. कोई भी काम पूरा मुकम्मल नहीं हुआ. तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा झूठ कहना चाहिए था उन्हें? नहीं कहना चाहिए था. कोई अक्लमंदी से और शऊर के साथ एक कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान की करोड़ों की जनता के जहनों में मोदी जी अपना क्या नक्श
और वो क्या छोड़ना चाहते हैं ऐसे झूठ कहकर? झूठ कहकर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने जो भी करना है अपने हिसाब से करना चाहते हैं। उन्होंने ना अदालत, ना कोर्ट, ना जज, ना फैसला, जो बोले उन्होंने वो सही। मीडिया उनकी, हर चीज़ उनकी। हाँ, जो मीडिया को उन्होंने बोले वो मीडिया अपने को बोलती। तो आपको क्या लगता है कि फिर आवाम को ज़रूरत किस बात की? 15 लाख रुपए होना यानी कुछ और है जो आवाम को चाहिए? भाई आवाम को 15 लाख नहीं दिए तो नहीं दिए, सुकून से रखना चाहिए। उन्होंने हिंदू मुसलमान में बांट दे रहे। सही, ये बात उनसे पहले हो रही, बाद में सब ये वजह से कर्नाटक निकल गया उनका। कर्नाटक जो उनके हाथ से छूट गया, इसकी वजह से छूट गया। मोहम्मद हुसैन, ये बताओ कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? 15 लाख रुपया है ना, 1500 रुपया है ना, कुछ भी है। तो वैसे ही बोले ना, लॉकडाउन के टाइम पे भी बोले वो करते ये करते बोल के लॉकडाउन में कुछ भी नहीं करे। और नोटा बंद करने के टाइम पे भी लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा लीडर आपसे कहे कि 15 लाख रुपया आए, तो आपको कितनी उम्मीद थी? तो उम्मीद तो थी कि नहीं थी। क्या उन्होंने लीडर रह के भी कौन सा लोगों को सही करे बोल के उन्होंने ना फिल्म को सही करे, ना मियाँ भाई को सही करे, ना कुछ आपको करे। फिर मुझे ये बताओ कि क्या किसी लीडर को ऐसा झूठ कहना चाहिए? तो झूठ तो नहीं करना, राजनीति कर रहे तो जो है सही बोलना हो। राजनीति क्योंकि अभी भी उनके पास टाइम है, अभी भी वो सत्ता में है, अभी भी वो कुर्सी पर है। नरेंद्र मोदी अभी भी कुर्सी पर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या 15 लाख रुपए आज तो भी दे देना चाहिए उनको? दे देना चाहिए, नहीं देना चाह रहे हो? मतलब आपको लगता है कि कुर्सी से उतरने से पहले तो भी दे देंगे, कम से कम ये वादा तो पूरा करके जाना? नहीं कर सकते वादा, इसलिए नहीं कर रहे बोल के। अब गुलबर्गा कर्नाटक में पूरा तो क्या है, कांग्रेस वाले जीते। सो अब हमारे गुलबर्गा आप गुलबर्गा के हैं? गुलबर्गा। अच्छा, परसों इलेक्शन में गया, पूरा कांग्रेस जीते हमारे तरफ, पूरा कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप? आपके पास के एमएलए कौन है? हमारे पास एमएलए नो, हमारे खमरुल इस्लाम साहब थे ना, इंतकाल हो गए। अच्छा, कनीज फातिमा, उनकी अहलिया नो थे। पूरा हमारे तरफ कांग्रेस जी से, पूरा यादगीर, गुलबर्गा, वाड़ी, शाहबाद, उधर पूरा होचे, बीजापुर सब उधर होचे। सो कांग्रेस वाले चाहे सो बीजेपी तो पूरा चले गया। इस बार उन्होंने क्या है, वोटा भी चोरी कर रहे थे। अब वोटों भी चोरी नहीं कर सके उन्होंने, बीजेपी वाले। वोटों से भी क्या उनको पूरा टाइट चल रहा था मामला, तो इसलिए क्या है बार बराबर। कुर्सी से उतरने से पहले हिंदुस्तान की आवाम के अकाउंट्स में 15 लाख रुपये भेज देंगे। नहीं बेच सकते उन्होंने, 15 लाख बेचते ना, 15 रुपये बेचते हो। बेचे तो भी क्या है, छोटा मोटा देते, टाकियाँ बांटा, वो बांटा, ये बांटा करते हो, उन्होंने ख़त्म कर देते हो। जीरो अकाउंट भी खोले, जीरो। चारमीनार के मशहूर करीम खान साहब उर्फ लाला के साथ हम हैं। मैं लाला से पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि हर हिंदुस्तानी शहरी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपये आएंगे। क्या लाला आपके अकाउंट में 15 लाख रुपये आए? किसी के भी अकाउंट में नहीं आए, पूरे किसी के भी अकाउंट। झूठ बोला उन्हें, झूठ कह दिया। झूठ ही बोला। तो इतना बड़ा लीडर जबकि आज बहुत पॉपुलर लीडर है, वो अपने आप की भी बहुत तारीफ करते हैं कि मेरा सीना 56 इंच का है। तो क्या इतना बड़ा आदमी होकर हजारों करोड़ों की आबादी जो हिंदुस्तान की है, उनसे ऐसी झूठ कह सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्यों बोले तो उन्हें स्टार्टिंग ही झूठा है, स्टार्टिंग झूठ बोल के आया हूँ, वरना सच्चाई पर ऐसा है तो सवाल नहीं लगता। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की सियासत ये सच्चाई पर मुबनी है? नहीं, सच्चाई पर नहीं है, झूठ पर ही है। झूठ पर मुबनी, झूठ पर सच्चाई वाले को डर ही नहीं रहता। सही बात बोलता हूँ। कैसा आवाम उनके फिर झांसे में आ गई? हाँ, झांसे में क्या, धोखे में आती जाती। हम क्या अच्छे आ जाते। तो मतलब आवाम भोली भाली आ जाती है, इन्हें डाल देगा भाई, इन्हें ऐसा करेगा, वैसा करेगा। पहले हर चीज़ के बारे में बोला उन्हें, मैं ऐसा करूँगा, वैसे कुछ भी नहीं करे उन्हें। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि चलिए हिंदुस्तान की आवाम को, अब आप जिस तरह एक छोटा सा कारोबार है आपका, फुटपाथ पे कारोबार है, तो क्या आपको अब नरेंद्र मोदी से, जो कि अभी भी कुर्सी पर है, तो क्या उनसे आपको 15 लाख रुपये चाहिए या कुछ और चाहते हैं? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना है, ये कुछ और आपकी नहीं मांग है? खाली इंसाफ होना, इंसाफ हमको, हर किसी के साथ इंसाफ होना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, या यहाँ तक कि जानवर क्यों ना हो, उसके साथ भी इंसाफ करना, वो उस लायक रहता हो। अब अल्लाह ताला ने उसको टाइम दिया, थोड़े दिन रहेगा, उसके बाद चले जाएगा। जब उन्हें पलंग पर लेटेगा, जब याद आएगा उसको, अरे सही बोल रहे थे, मैं गलत किया। अभी तो उसको अच्छा ही दिख रहा ना, सब अच्छा ही दिख रहा। हाँ, अच्छा ही दिख रहा उसको, क्या हमको भी अच्छा ही दिखता। पैसा आते होगा, जय जयकार उसकी, कुछ भी झूठ बोल दो, सच बोल दो, जो मुँह का है बोल दो। झूठे पर अल्लाह की लानत और तमाम इंसानों की लानत। एक दिन उसको सज़ा भरना। ऐसे कई हमने ये हमारी ज़िंदगी में 70 समझो 80 के करीब उम्र है, ऐसे कई देखे मोदी के तरीके।
आए भी आए और चले गए, ऐसे आए भी चले गए, कसम खाए। एक ऐसा लीडर बताइए जो आपके दिलो दिमाग पर नक्श छोड़ गया हो। अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद, अच्छा। उन्हें जो अभी मौजूदा कोई लीडर? अभी असद साहब हैं, असद साहब, डंके के चोट पर बोलते हैं। जी जी। अकबर साहब है, डंके के चोट पर बोलते हैं, क्योंकि उनको कोई है मतलब ही नहीं है। सही, वोट दो या नक्को दो, लेकिन सच्चाई बोलेंगे उन्होंने। बिल्कुल। असद साहब की मैं नहीं कर रहा हूँ बोल के, हर मजहब इज्जत करता है उसकी, बाकी किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी लीडर की इज्जत नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इज्जत कोई भी नहीं करता। हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत रहते, बिल्कुल। बोलते ना, बने के सेहरे से लाखों निसार होते हैं, बने की जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मोदी सरकार का भी ये चालन है। फिर से एक बार मुकर्रर, फिर से एक बार दोहराइए आप। बने के सेहरे से लाखों निसार होते हैं, बने की जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। क्या बात। हाँ, ये चाहिए। मोदी सरकार का भी यही आलम है। बने हैं, हाँ, बने हैं तो से लाखों जब बिगड़ेंगी, जब बिगड़ेगी, हाँ, जब दुश्मन हजार होते हैं, फिर दुश्मनों की गिनती गिन नहीं सकते हो? गिनती गिन ही नहीं सकते, गिन ही नहीं सकते हो? नहीं गिन सकते, इसलिए। चलिए, अच्छी बात है। मैं चार मीनार पर लाला के साथ हूँ। लाला बिल्कुल बहुत मुफीद बात बता रहे थे कि एक आदमी इतनी बड़े ओहदे पर जब पहुँचे, वो प्रधानमंत्री का वो कुर्सी पर जब बैठे, तो कम से कम उन्हें सच कहना चाहिए, सच ही का सहारा लेना चाहिए। हिंदुस्तान की आवाम का कहीं ना कहीं भरोसा नरेंद्र मोदी पर से उठ ही चुका है। क्या मैं हमारा नहीं, हर किसी से भी पूछो आप। मैं आज चार मीनार पर हरी किशोर दास जी के पास हूँ। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर हिंदुस्तान के शहरी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? नहीं आए। तो मतलब उन्होंने बात ऐसे ही कह दी, क्या सोच कर कहा होगा? अब उसके दिमाग में क्या आया वो तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या सोच के वो बताए, लेकिन हम लोग का जो 15 लाख रुपया चाहे 3 लाख रुपया, तो हम लोग का पास में अकाउंट में कोई भी। आपको कुछ उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी वाकई सच कहेंगे और आपको 15 लाख रुपए भेजेंगे? नहीं, लग रहा था कि चांस जैसे कि बोल रहा था कि हाँ ये काला धन ये निकल जाएगा, तो काला धन का पैसे जितना है वो पूरे गरीब को मिलेगा, लेकिन वो गरीब का वो बोले कि 15 लाख रुपया जो मिलेगा वो हम लोग का 1 रुपया भी नहीं मिला। तो काला धन भी नहीं आया। अब वो उनके पास गया कि नहीं गया, वो निकाले कि नहीं निकाले, वो तो हम लोग का मालूम नहीं है। तो 15 लाख रुपए भी नहीं मिले? नहीं मिला। तो उन्होंने क्या सोचकर हिंदुस्तान की करोड़ों जनता से झूठ कह दिया? क्या सोचा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब उनके दिमाग में क्या वो विचार उनके क्या था, दिमाग में क्या था? वो क्या तो लगता है कि उन्होंने हमको धोखा दिया है? तो ऐसा तो हुआ है, हमको हिंदुस्तान की भोली भाली आवाम को उन्होंने धोखा दिया है। तो उन्हें आप कोई मशवरा देना चाहेंगे कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये भरोसा दे करके दिल को, जो किसी का होता है कि किसी कोई काम का भरोसा दे करके जो काम नहीं होता है, वो तो मन का दुखी हो जाता है ना। मन में छोटा, जो बड़े मन होता है वो छोटा मन हो जाता है। मतलब उन्होंने हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। हरी किशोर दास जी से मैं बात कर रहा था। मैं चार मीनार पर हूँ। उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा नाम शेख शौकत है। मैं आज चार मीनार पे हूँ। मैं शौकत साहब से बात करना चाहूँगा। शौकत साहब, ये बताओ कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा कि हर सबके अकाउंट्स में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आपको 15 लाख रुपए मिले? 15 पैसे नहीं मिले। वो नरेंद्र मोदी नहीं है, दलिंदर मोदी है। वो खुला बोलता हूँ मैं, उसके पास कान में आवाज़ देंगे, इतने जोर की आवाज़ है मेरी। दीजिए, आप आवाज़ दीजिए। आप, हाँ, आपको हक है, आप आवाज़ दीजिए। आप अरे क्या करे आपने? आपको कि इतना बड़ा आदमी होकर झूठ कैसे कह सकता है? अरे कहीं का बड़ा आदमी, चाय बिकाने वाला बड़ा होता है। मैं भी भजे बिकाता हूँ, मैं बड़ा होता हूँ। हाँ, भाई भजे बिकाता हूँ, 1 रुपए को कुछ भी करो। आदमी क्या चाय बेचो कि भजिए बेचो, घर जितना ऊंचा बनने से इंसान ऊंचा नहीं होता, अखलाक ऊंचे होना पड़ता है। क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत सही बात कही आपने। घर ऊंचा बनने से इंसान ऊंचा नहीं होता, अखलाक ऊंचा होना पड़ता है भाई मेरे। चिच्चा शराबी बोलते हैं मेरे को। मतलब नरेंद्र मोदी को सच कहना चाहिए था। अरे कहीं का मोदी नहीं, दलिंदर मोदी है। वो दलिंदर की लगा दिया। आपको लगता है कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है? बहुत बड़ा धोखा। हर अकाउंट में पैसा डालता हूँ मिला। अच्छा, 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा, जरा मेरी बात दिल्ली को जा रही है। बिल्कुल जाएगी।
बोलो। बिल्कुल जाएगी। हाँ, अपन रास्ते के आम आदमी पब्लिक, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। हाँ, लेकिन ख्याल आप ही को जाहिर करना है। तो मैं बोलो ना भाई, जितना है मेरे पास से उतना बोलो। मैं 1 रुपए को भजा बिका तो आज मैं रोड के ऊपर पैदल चल रहा हूँ, कभी साइकिल नहीं मिली मेरे। मैं आज चार मीनार पे मोहतरमा नगीना के साथ हूँ। मैं नगीना जी आपसे जानना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा कि 15 लाख रुपये सबके अकाउंट्स में आएंगे, तो क्या नगीना आपको 15 लाख रुपए मिले हैं? नहीं मिले। तो 15 रुपए नहीं मिले। जब आपने सुना था कि नरेंद्र मोदी गरीबों को या सबको 15 लाख रुपए देंगे, तो आपने कितनी उम्मीद उनसे बांधी थी कि आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे? 10 रुपए नहीं मिला। 10 रुपये भी नहीं मिले। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने झूठ क्यों कहा ऐसा? मालूम नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है? 35 करोड़ की आबादी में हमने तो देखा भी नहीं। जी देखा भी नहीं 15 लाख। 15 लाख आप देखे भी नहीं आज तक। लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया था, हिंदुस्तान की गरीब आवाम से वादा किया था कि 15 लाख रुपए मिलेंगे। आप क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? जी मिले ही नहीं 15 नहीं, लाख। आप क्या करते हैं मैं पूछ रहा था आपसे? मुझे फूल बेचते। ये प्लास्टिक के गमले बेचती हैं नगीना जी, और अपनी ज़िंदगी ये प्लास्टिक के गमले बेचकर ज़िंदगी बसर कर रही हैं। आपको किसी हुकूमत से कोई आज तक मदद मिली है? कुछ भी नहीं मिला सर। यही ग्राउंड रियलिटी है कि गरीब आवाम तक हुकूमत के जो स्कीम्स है वो नहीं पहुंच रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत कुछ ऐसे स्कीम्स और ऐसे स्ट्रैटेजीज़ के साथ आए ताकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले, मेहनत मजदूरी करके जीने वाले, उन तक हुकूमत की पॉलिसीज़, उनके स्कीम्स और उनका फ़ायदा हुकूमत को पहुँचे, आवाम को पहुँचे। आज चार मीनार पे मैं नरेश के साथ में हूँ, जो कि बिल्कुल उनके 18 साल चल रहे हैं। वो 18 साल की अपनी उम्र में दाखिल हो चुके हैं। नरेश, आप क्या करते हैं? फोटोग्राफर का काम करता हूँ। नरेश फोटोग्राफर का काम करते हैं। नरेश, ये बताओ कि 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर वो बनकर आए, उससे पहले उन्होंने अपने चुनावी रैलीज़ में कहा था कि 15 लाख रुपये सबके बैंक अकाउंट्स में आएंगे। क्या नरेश, तुम्हारे अम्मी अब्बा किसी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपये आए हैं? नहीं मिले। चार मीनार के रूबरू हूँ मैं। आरिफ भाई हमारे साथ है, अतर का कारोबार करते हैं। मैं आरिफ भाई से पूछना चाहूँगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन रैलीज़ में कहा था कि हर गरीब आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आरिफ भाई आपको 15 लाख रुपए मिले? नहीं मिले। तो उन्होंने फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कह दिया जब उनको देना ही नहीं था? तो उन्होंने क्यों हमको गरीब को एक उम्मीद जगाई कि तुम्हें भी कुछ मिलेगा, तुम उन पैसों से कुछ कर सकोगे? हो सकता है कि हमें से बहुत से लोगों ने कुछ ख्वाब देख लिए थे होंगे कि 15 लाख रुपए आएंगे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बच्चों की शादी करूँगा या उनकी तालीम के लिए ख़र्च करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा हमको? भरोसा देने के लिए और अपना वोट लेने के लिए ऐसा किया उन्होंने। अच्छा, तो क्या फिर ये हमारे साथ धोखा नहीं है? धोखा है, बहुत बड़ा धोखा किया जी। तो चलिए, आपको अब नरेंद्र मोदी अभी भी कुर्सी पर हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, तो आप उनसे अभी क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारे लिए क्या करें? कुछ नहीं कर रहा है। क्या करना चाहिए? मतलब उन्हें कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए, खाली ऐसी बातें नहीं। बड़ी बड़ी बातें करता, कुछ नहीं करता अभी काम। चलिए, शुक्रिया। मैं बिल्कुल चार मीनार के सामने हूँ। चार मीनार की एक बड़ी इमारत मेरे सामने है और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर ने, मुदस्सिर भाई और हम सब से कहा था 2014 के इलेक्शन रैलीज़ में कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के अवाम के बैंक अकाउंट्स में 15 लाख रुपए आएंगे, कि क्या आपको वो 15 लाख रुपए मिले? जी नहीं, 15 रुपए भी नहीं आया अब तक। 15 रुपए भी नहीं आए। तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा होगा जब उनको देना ही नहीं था? वो कहा होगा, देखो कहा इसलिए उसको लाभ था, जब कि मतलब वोट मिले या कुछ, अच्छा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, इसीलिए कुछ वादे बड़े बड़े भी उन्होंने पाया ज़रूर है, लेकिन खोया कुछ भी नहीं है। उन्होंने खोया है, आवाम का एतमाद खोया है, आवाम का भरोसा खोया है। वो भरोसा खोया है, लेकिन तो कल उनको कौन वोट करेगा? देखो, बड़ी बड़ी बातें करे तो कुछ भी नहीं होते, उसको निभाना पड़ता। जैसे पैसे देने के वास्ते बोले, पैसे के लिए भूखे नहीं अपन, अपने काम करना। ये जैसे कुछ
अलग-अलग ख्वाहिश रहती है, अलग-अलग हाँ, कुछ ऐसे स्कीम्स विकास लेकर आए रहता। जो ज़मीनी लोगों तक पहुँचे। जरूर। चार मीनार के करीब खड़े हैं महबूब भाई। जी हाँ। महबूब साहब, आप होटल में काम करते हैं। महबूब साहब, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था कि हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या महबूब भाई आपको 15 लाख रुपए मिले? जी नहीं। जी नहीं। तो ऐसा जब उनको देना ही नहीं था तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्यों कहा होगा? क्या बताना उनका? तो आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत तो बदलने कुछ होना है। बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं? बता रहे प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? कौन सी पार्टी चाहते हैं आप? कोई ना कोई पार्टी आने कुछ होना। నాగేష్ గారు, మన మోదీ గారు ఎలక్షన్ ర్యాలీస్లో అన్నారు మరి 15 లాక్ వస్తాయని. మీకు 15 లాక్ వచ్చాయా? ఈ 15 లాక్ పింఛన్ లేదు, సర్టిఫికేట్ నీకు పింఛన్ గవర్నమెంట్ డూప్లికేట్ సర్టిఫికేట్ చూశాను. మరి గట్ల సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినాక 15 లాక్ 15 లాక్ ఇస్తే ఆయన కాలు గాడి నెత్తిన పోసుకొని ఇంటికాడ ఉంటుంది. ఎందుకుంటుంది సార్ ఇవన్నీ? మరియు ఆయన ఏదో ఆ మాట గాలికి అనేసాడా? ఇప్పుడు రాజకీయం ఉంది సార్. ఎవరికైనా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ అయినా ఈ కాంగ్రెస్ అయినా ఏదైనా వాళ్ళ ఓట్ల గురించే ప్రజలను వాడుకుంటారు, కానీ చేసేది ఏం లేదంటారా? మరియు ఆ లీడర్ అలాంటి మాటలు ధోక మనకు ఏదో ధోకలాగానే అయింది కదా. అది కరెక్టే సారు, మోసం అవుతుంది. అవును, అది మోసమే. అవును, ఏదో చెప్పి ఏదో మోసపోయాం మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదో మంచి చేస్తాడు కదా సారు అని చెప్పి మనం ఓటేస్తాం. అవును, ఇక మన నోటే మనం పోసినట్టే మనం ఏం చేస్తాం. కనీసం మీరేమంటారు? లీడరు ఎలాంటి లీడర్ కావాలి? మరి మీకు ఎలాంటి లీడర్ కావాలి? మనకి ఎవరైనా కానీ సార్, మనకు నో ప్రాబ్లం. అది మనకు కొంచెం సాయం చేసి మాట మీద నిలబడి సాయం చేసేవాళ్ళు కావాలి. కానీ ఎవరైతే ఏమైతే ఈయన పార్టీ గవర్నమెంట్ ఆయనదైనా గవర్నమెంట్, అన్ని గవర్నమెంట్లు అన్నీ ఒకటే ఉంటాయి. ఇదేం అలా ఉండదు, అదేం అలా ఉండదు, ఏది మనకు సాయం చేసేవాళ్ళు. నాగేష్ గారు చెప్తుంది ఓ మాటనే, ఎవరైనా లీడర్ కానీ మాట ఇస్తే ఆ మాట మీద నిలబడాలి. అది పేద ప్రజలకు ఆదుకోవాలి.